Hello, hello. Uh, Today we are going to start next point, that is interfacing of LCD. Okay, so we are going to see here what is LCD. Okay, so see, LCD is a short for liquid crystal display. Each LCD screen contain a matrix of pixels that together form an image on the screen. The LCD is a flat panel display technology commonly used in consumer electronics. Now there are numerous types of LCDs are available in market. Okay, so out of that, for your understanding point of view, I have taken a 16 by 2 LCD module for study point of view. So here the 16 by 2 LCD module consists of two rows, each with 16 columns, which can in turn each display 16 character. The main advantage of using a character LCD instead of 7 segment display and other multi 7 segment LEDs is that there is no limitation in displaying specials and custom character animations. Of the 16 pin, 8 are data pins through which data or commands are passed into the LCD register. Okay. Now here LCD कुछ इस तरह दिखाई देगा. ओके, LCD में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह उसमें 16 कॉलम्स और 2 रोज रहेंगे. हर रो और कॉलम के लिए पर्टिकुलरली एग्जैक्ट नंबर रहता है. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट जो रो है वह रो का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा 80H ऑनवर्ड्स. ओके, और लास्ट कॉलम का एड्रेस रहेगा फर्स्ट रो का 8FH. ओके, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एड्रेस रहेगा C0H और सेकंड रो लास्ट कॉलम का एड्रेस रहेगा CFH. ओके, in case if you have to display any character over a specific number, okay, over a specific column, row and column combination, then you can display it just by utilizing their addresses. Okay, आपके सामने मैंने यहाँ पर सारे एड्रेसेस भी रख दिए. Okay, according to these addresses you can able to use these addresses in your programming. Otherwise directly, in case if you want to display 16 character at a time, okay, only the first address is compulsory. Okay, so 80H will be enough for displaying a 16 character. C0H will be enough for displaying the 16 character over the second column, right? Second row, sorry. Okay, नाउ बॉटम लाइन पे आपको यहाँ पर देके रखा है सारे पिन डिटेल्स. ओके, पिन डिटेल्स आपको कुछ इस तरह रहेगा: VSS, VDD, VEE, RS, R/WE, DB0 to DB7, LED प्लस और LED माइनस. ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पर रहेंगे ये पिन्स. एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारे पिन्स का डिटेल्स. सी, पहला पिन रहेगा VSS. ओके, so it is a ground pin of the LCD module. 0 volt is given to this pin. Okay, second pin is VDD, power to LCD module, plus 5 volt supply is given to this pin. Pin number 3 is a VEE. It is used for contrast adjust pin. This is done by connecting the end of the 10K potentiometer to plus 5 volt and ground, and then connecting the slider pins to the VEE pin. The normal setting is between 0.4 volt to 0.9 volt. ओके, आपको मल्टीमीटर से वो ऑब्जर्व कर लेना पड़ेगा कि भाई इस वोल्टेज में वहां पर हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है. अदरवाइज इट शुड नॉट गोज ग्रेटर देन और लेस देन. ओके, इसीलिए आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी देके रखे हैं. तो एलसीडी अगर आप कनेक्ट करने जाओगे तो यहाँ आपको उसका वोल्टेज अगर वहां ड्रॉन रहेगा तो ही एलसीडी बराबर प्रॉपरली ग्लो होगा.
ओके, टर्न ऑन होगा, राइट। अभी याद रखिए कुछ पिन्स मैं बताने जा रहा हूं, पिन नंबर 4, 5 एंड 6, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are going to handle the LED or 7 segment, then in such situation such type of pins are not available, but whenever you are going to handle the LCD, then RS, R/W and E pins is necessary. Okay, because why it is necessary, just you can able to understand when I going to explain all these pins. Okay, so that's why pin number 4 is RS. RS is called as a register select pin. Okay, so the LCD module has two register. Okay, whenever you are going to handle the LCD, remember it has two register. Internally they are present with the internal microcontroller which are attached with the LCD. जनरली ध्यान में रखना कभी भी LCD जो मॉड्यूल रहता है उसमें इंटरनली माइक्रोकंट्रोलर प्रेजेंट रहता है. ओके, दैट माइक्रोकंट्रोलर हैज दिस टू रजिस्टर्स. ओके, द पर्पज ऑफ दैट माइक्रोकंट्रोलर इज टू डू द एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस ओनली LCD. ओके, इसका बाहर कोई यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता. ओके, जस्ट ए पिन रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो सारी ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए वह माइक्रोकंट्रोलर का यूटिलाइजेशन होता है, याद रखिए. सो दैट्स व्हाई in that microcontroller you will find these two register. They are namely command register and data register. ओके, लेकिन अभी यहाँ पर एक कमांड रजिस्टर कब अवेलेबल रहेगा, डेटा रजिस्टर कब अवेलेबल रहेगा, तो ये ध्यान में लेते हैं. ओके, ध्यान में रखिए, when RS is equal to 0 command register will be available, when RS will be 1 data register will be available. ओके, तो आपको कमांड देना है या डाटा देना है. ओके, आपको कमांड देना है या डाटा देना है ये आप डिसाइड कर सकते हो. कमांड मीन्स व्हाट और डाटा मीन्स व्हाट, दोनों चीजें बता देता हूं. ओके, यहाँ रजिस्टर उसी रिलेटेड है जो डेटा रजिस्टर है या कमांड रजिस्टर है. तो कमांड रजिस्टर का काम है टू एग्जीक्यूट द कमांड. ओके, लेकिन ये कमांड किसके लिए रहेगी और कौन देगा. ओके, वी आर गोइंग टू पास दैट कमांड. क्यों पास करना है, क्योंकि ये कमांड जब आप पास करोगे तो ये कमांड के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या एक्टिविटी वहां पर कैरी आउट करनी है. मैं बताऊंगा कमांड्स कौन कौन से रहेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई याद रखिए, when RS will be 0 then command register will be selected and that command register will hold that command which you pass through the data lines. ओके, जो डेटा लाइंस के द्वारा आप पास करने वाले हो वो डेटा लाइंस के द्वारा वह कमांड आएगा और वो कमांड इस रजिस्टर में होल्ड किया जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दैट टाइम द RS will be available. Okay, means that data register will be available. Okay, now second one is a data register. Okay, so data register is used for holding the data. Means in case I have to send high, I have to display high, so that's why high अगर display करना है तो ये data register वहां पर use होगा. When RS will be 1 then the data register is available. It hold our data H and I one by one. हाँ, मैंने क्या कहा, 1 by 1. उसमें 80 बिट का वहां पर प्रोविजन रहेगा. H 8 बिट का रहेगा, I 8 बिट का रहेगा. क्यों, इट उसको ASCII कोड रहेगा और ASCII कोड के द्वारा आपका डाटा उसे 1 by 1 पास होगा. सो दैट्स व्हाई when RS will be 1 then the data register is available and it will help you to hold a data. ओके, जब डेटा अवेलेबल रहेगा तो डेटा वह LCD स्क्रीन के ऊपर कैसे बताना है, वह माइक्रोकंट्रोलर इंटरनल जो है LCD के बीच में वह उसका काम रहेगा टू डिस्प्ले दैट डाटा और टू एग्जीक्यूट दैट कमांड विच इज अवेलेबल इन दैट कमांड रजिस्टर. तो कमांड रजिस्टर और डेटा रजिस्टर में जो भी डाटा और कमांड आएगा तो वो माइक्रोकंट्रोलर रीड करेगा, फेच करेगा, ओके, डिकोड करेगा और उसे प्रॉपरली वहां डिस्प्ले भी करेगा. ओके, तो जो इफेक्ट रहेगा कमांड का वो इफेक्ट वहां एप्लीकेबल करने के लिए वह माइक्रोकंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा और जो डाटा रहेगा वो डाटा डिस्प्ले कराने का काम वहां पर वह माइक्रोकंट्रोलर का रहेगा. राइट, अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर सेकंड पिन देखते हैं R/W बार. ओके, यहाँ पर आपको शायद ही W बार ना दिखाई दे, लेकिन ध्यान में रखिए R/W बार. ओके, इस तरह पिन है मेरे पास. यहाँ पर स्लाइड में बार ड्रॉ करने के लिए प्रोविजन नहीं है,
but I am telling you orally. Okay, so that's why read and write mode. Okay, so that's why remember logic high at this pin is called read mode और लॉजिक लो एट दिस पिन इज कॉल्ड राइट मोड. यानी राइट मोड अगर आपको चाहिए है तो इस पिन के ऊपर लॉजिक लो सिग्नल या लॉजिक लो बिट वहां पर प्रेजेंट रहना जरूरी है. अगर आपको रीड ऑपरेशंस कैरी आउट करना है तो आपको वहां पर लॉजिक हाई बिट वहां या लॉजिक 1 बिट वहां पर पास करना जरूरी है. ओके, नाउ क्वेश्चन में अराइज. ओके, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर जनरेट कर रहा हूं कि भाई अभी ये एलसीडी है तो एलसीडी इज ए डिस्प्लेइंग डिवाइस. क्वेश्चन अराइज हियर, क्या मुझे यहाँ पर डाटा या कमांड रीड या राइट करने की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली मुझे एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई मुझे रीड और राइट लाइन का यूज क्या रहेगा. सी, आई एम टेलिंग यू, whenever you want to write any data means जब आप यहाँ पर कमांड और डाटा रजिस्टर में कोई डाटा राइट कर रहे हो तो राइट ऑपरेशंस कैरी आउट किया जाएगा. ओके, लेकिन जब आपको इस पर्टिकुलर कमांड रजिस्टर में जो कमांड है वह एग्जीक्यूट हुई कि नहीं और वह पर्टिकुलरली प्रॉपरली उसके फीचर्स एप्लीकेबल हुए या नहीं, ये अगर आपको मॉनिटर करना होगा तो मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर रीड नाम की लाइन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है. तो रीड मोड के द्वारा आप कमांड रजिस्टर के द्वारा कोई कमांड एग्जीक्यूट हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, ये आप वहां ट्रेस आउट करें. इस वजह से यहाँ पर रीड सिग्नल भी प्रोवाइड किया है, नहीं तो रीड सिग्नल की जरूरत नहीं होती थी. याद रखिए आप ये पॉइंट. ओके, तो रीड सिग्नल की जरूरत हमें मॉनिटर करना है कि वेदर विच एक्टिविटी इज कैरिड बाय द एलसीडी कंट्रोलर. दैट्स व्हाई हियर द रीड लाइन विल बी देयर. ओके, सो दैट्स व्हाई रीड के द्वारा हम बहुत सारी बातें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, और वह प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में वहां पर जनरली यूटिलाइज होती है. तो जनरली अगर 8051 की बात होती थी तो मैं वहां पर आपको फिजिकली वहां पर वो प्रोग्रामिंग वहां पर करके देता था. ओके, उसमें मैंने ऑलरेडी प्रोविजन डाल के रखी थी. ओके, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो एम्बेडेड सिस्टम में जो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग यहाँ पर बता रहा हूं इसमें रीड की प्रोविजन नहीं बताऊंगा. ओके, डायरेक्टली आपको राइट की ही प्रोविजन बताऊंगा क्योंकि राइट के द्वारा ही यहाँ पर फटाफट एक्टिविटी कैरी आउट करके मैं डाटा डिस्प्ले करा दूंगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको सिर्फ राइट की ही प्रोविजन बता रहा हूं. राइट, सो ध्यान में रखिए, रीड की प्रोविजन जनरली हम असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैरी आउट करते ना तब मैं वहां पर शो आउट करता हूं. ओके, नाउ अब हम यहाँ पर एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग कैरी आउट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में यहाँ राइट की प्रोविजन मैं बता रहा हूं. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट पिन है एनेबल पिन. ओके, अभी एनेबल करने की जरूरत है क्या एलसीडी को? आंसर रहेगा यस, इट विल बी नेसेसरी टू एनेबल द एलसीडी. बट व्हाई एलसीडी इज नीडेड टू एनेबल? ओके, whenever you are going to do a read or write operation, that time the LCD will get enabled in either read mode or in write mode. So that's why whenever we are going to do a read operation, then for read operation low to high pulse will be necessary. Okay, but whenever we are going to do write operation, that time a high to low pulse will be necessary. So that's why here I have written a high to low pulse at this pin will enable the module only in write mode. Okay, so that's why enable का मैंने यहाँ पर मीनिंग भी उतना ही दिया है आपको. राइट, पिन नंबर 7 रहेगा DB0 to DB7. Okay, these pins are data lines. Okay, via these lines you can able to pass a command or you can able to pass a data. Okay, so that's why इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर ऑफ एलसीडी में आपको डाटा या कमांड भेजना होगा तो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर डेटा लाइंस की वहां पर जरूरत रहेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई द कमांड एंड डाटा आर फेड टू द एलसीडी मॉड्यूल थ्रू दिस पिन्स. दे आर 8-bit wide and it is called as 8-bit data bus. Okay, then pin number 15 and 16 are LED plus and LED minus. Okay, so that's why
एनोड ऑफ बैकलाइट एलईडीज एंड कैथोड ऑफ बैकलाइट एलईडी आर कनेक्टेड विद दिस। ओके, तो बैकलाइट जो रहता है वहां पे एलसीडी के पीछे एक बैकलाइट यानी एक एलईडी वहां पे रहता है, so that's why to turn on that LED, ओके, और टू एनेबल दैट यानी आपको वहां उसका कनेक्शन वहां पर जरूर रहेगा, so that's why पिन नंबर 15 और 16 will be there. Okay, now हाँ, नाउ यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू कैन यूज दिस एलसीडी मॉडल। ओके, तो हियर क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ डज एन एलसीडी मॉड्यूल वर्क, राइट। मैंने अभी आपको सारी पिंस की इंफॉर्मेशन तो दे दी, अभी आपको यहाँ थोड़ी आइडिया तो आ गई कि भाई यहाँ पिंस का क्या पर्पज है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल्स में कि यहाँ आपको एलसीडी मॉड्यूल को अगर वर्क करवाना है प्रैक्टिकली, तो आप उसे कैसे यहाँ वर्क कैरी आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग अ 16:2 एलसीडी, ओके, रीड एज 16:2। ओके, तो कोई 16x2 बोलता है या कोई 16:2 बोलता है, डोंट वरी। ओके, जैसा आपको चाहिए वैसा आप उसके कॉल कीजिए, नो प्रॉब्लम। वी कैन display 16 character on row 1 as well as row 2। ओके, हम 16 कैरेक्टर यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं पहले रो और सेकंड रो में, तो टोटल कुल मिलाकर 32 कैरेक्टर आप डिस्प्ले कर सकोगे। You have already seen the pin diagram. Okay, the three main important pins of this LCD are RS, R/W bar and E an enable pin. Okay, whereas the VEE pin is connected to the 10K potentiometer to control the brightness of the display. Now the LCD module consists of two registers, command register and data register. Okay, user can write any command such as clear display, display on, cursor on, or select the 16:2 मोड ऑफ एलसीडी। ओके, आपको यहाँ पर इस तरह के कमांड आपको अवेलेबल रहेंगे, तो आप ये कमांड रजिस्टर को पास करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो इसका एक स्पेसिफिक चार्ट रहता है, तो चार्ट भी आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ कौन कौन से कमांड्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो नियर अबाउट आपके पास यहाँ जो जो कमांड है, मैंने यहाँ कुछ नाम दिए हैं, क्लियर डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑन या कर्सर ब्लिंक। ओके, इस तरह के कमांड रहेंगे। ओके, सिमिलरली डेटा रजिस्टर का पर्पज है, यूजर मस्ट राइट द ASCII वैल्यू टू द कैरेक्टर दैट दे विश टू डिस्प्ले ऑन द एलसीडी। ओके, तो आपको जो डाटा डिस्प्ले कराना है, जो है फॉर एग्जांपल हाई है, हेलो है या SSBT है, जो भी डाटा आपको डिस्प्ले कराना है, तो वो आप वहां डायरेक्ट पास कर सकते हो या आप इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यू में भी पास कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रोल सिग्नल विल वर्क्स। ओके, RS का पर्पज यहाँ पर, RW बार का पर्पज और EN का पर्पज आपको देख के रखा है। हाँ, फिर से मैं जो बताया वह सारी बातें यहाँ पर बता के रखी। ठीक है, सी RS के रिलेटेड देखते हैं। To select between the command or data register, the RS signal is used. If we make an RS pin high and feed input to the data line, that is DB0 to DB7, this input will be interrupted as the data that is to be displayed on the LCD screen. If we make RS pin low and feed pin to the data lines, then this will be interrupted as a command. Okay, a command to the return to be returned to the LCD controller, like positioning cursor or clear screen or scroll. Okay, तो आप यहाँ पर RS का पर्पस यूज कर सकते हो एज अ कमांड रजिस्टर या डाटा रजिस्टर। ओके, जब आप कमांड या डाटा पास करोगे, तो पास करने के लिए आपको यहाँ इस पर्टिकुलर RS पिन को यहाँ हाई या लो करना पड़ेगा। ओके,
तो हाई करोगे तो यहाँ उसका पर्पज रहेगा आपको एज अ डेटा, और लो करोगे तो यहाँ इसका पर्पज रहेगा कमांड। ओके, जब यह पिन्स हाई या लो रहेगी तब ही आप डेटा लाइंस के ऊपर डेटा भेज के वह डेटा या कमांड आपका इस रजिस्टर में पास किया जा सकेगा। ओके, तो यह एक्टिविटी इन वन टाइम में ही होती है। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ ये सारी बातें यहाँ एट ए टाइम करनी पड़ती है। ओके, सो दैट्स व्हाई यह पर्टिकुलरली इस तरह आप उसे डाटा या कमांड भेजोगे। r/w bar, it is the read or write signal. r/w bar is low, it implies write mode, and r/w bar is equal to high, means it is a read mode. Okay, similarly enable, okay, the enable signal is used to latch the data, that is to place the data on the data bus from D0 to D7 and wait for a clock or pulse to send it, and when high to low pulse is sent into the E pin of LCD, the data is displayed on the LCD. ओके, तो आपको इस तरह का यूटिलाइजेशन यहाँ पर ये तीनों पिंस का कैरी आउट करना है। ओके, तो ये कैसे करना है, शायद ये आपको यहाँ पर थोड़ा अटपटा लगे कि अरे ये क्या बता रहे हैं सर, बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे कैरी आउट कर रहे हो, इसका यूज आप कैसे कैरी आउट कर रहे हो। तो ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में आपको वहां पर जैसे एनेबल होगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। अभी आपको यहाँ पर पिन डायग्राम यहाँ पर जो शो की थी, ओके, एलसीडी के लिए, तो अभी मैं यहाँ पर इंटरफेसिंग ऑफ एलसीडी शो कर रहा हूँ। ओके, तो इंटरफेसिंग ऑफ एलसीडी में यहाँ पर आपको इस तरह नाम तो लिखा है एलसीडी 20/2, लेकिन यह 16/2 एलसीडी रहेगा। ओके, यहाँ DB0 to DB7 पिंस है। ओके, r/w बार और E पिन है, और VDD, V0 और VSS ये पिंस रहेंगी। ओके, now next is कमांड, LCDs कमांड। ओके, तो LCD के कमांड्स कुछ इस तरह लिस्टेड रहेंगे। मैंने इसमें आपको सारी कमांड्स तो नहीं दी है। ओके, कुछ जो रिक्वायर्ड जो कमांड्स है वही दी है। ओके, नियर अबाउट LCD के लिए 200 या 250 कमांड्स रहेगी। ओके, you can utilize this for your professional use, but I think few of them are these ones. Okay, these are frequently needed whenever you are going to handle the LCD for programming. Okay, so here you can see I have given in 5 columns. Okay, first one is number, serial number, second one is instruction, okay, third one is hex code, and fourth one is hexadecimal code. Okay, तो 4 कॉलम में आपको यहाँ पर दिया है। पहला है फंक्शन सेट 8 बिट 1 लाइन 5/7 dots. Okay, actually this is a mode of LCD. Okay, here you can able to select 1 line LCD or 2 line LCD, so that's why first and second command is necessary. So अगर आपको सिंगल लाइन ही LCD हैंडल करना है, सेकंड लाइन नहीं यूज करना है, तो आप पहली कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको 2 लाइन का LCD हैंडल करना होगा तो आप सेकंड कमांड यूज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई फंक्शन सेट 8 बिट 2 लाइन 5/7 डॉट। ओके, इनका हेक्स कोड रहेगा नियर अबाउट, पहला कमांड का हेक्स कोड रहेगा 30H और दूसरे का रहेगा 38H। ओके, तो यहाँ लिखते समय 30H को यहाँ इस तरह लिखा है 0x30। ओके, तो हेक्साडेसिमल लिखने, नंबर लिखने के लिए यह स्टाइल अडॉप्ट की जाती है, 0x30 या 30H आप इसको इक्विवेलेंटली भी कह सकोगे। ओके, डेसिमल में रहेगा 48 और 56। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ कमांड है 4 बिट के लिए। हाँ, अभी ये आपको एक कहना रह गया,
अभी यहाँ पर आपको 8 बिट और 4 बिट यहाँ पर नरेट करके दिया है। अभी 8 बिट है तो 8 बिट है क्या? 8 बिट यानी आप पूरा D0 टू D7 लाइन यूटिलाइज करो, तो आप अगर यहाँ D0 टू D7 लाइन के यूटिलाइजेशन कर रहे हो एलसीडी का, तो आप 8 बिट इंटरफेस लोगे। अगर आप D0 टू D3 ही लाइन यूज करना चाह रहे हो, 4, 5, 6, 7 यह लाइन आप यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसे कहोगे 4 बिट एलसीडी। जनरली इस मोड्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ओके लिसन, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिंस ओके मिनिमम रहेंगे, तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर आर गोइंग टू हैंडल एलसीडी एज अ 4 बिट मोड, और जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पिंस अवेलेबल रहती है इंटरफेसिंग के लिए, तो वह 8 बिट इंटरफेस के लिए जाते हैं। तो मोस्टली प्रोफेशनल प्रोग्रामर ये फाइंड करते हैं कि भाई उनके पास नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस ज्यादा रहेंगे, तो अगर ज्यादा आईओ डिवाइसेस रहेंगे तो मोस्टली दे विल हैंडल 4 बिट इंटरफेस। ओके, तो 4 बिट इंटरफेस में वह प्रोग्रामिंग कैरी आउट करते हैं। तो 4 बिट इंटरफेस के लिए आपको यहाँ पर 2 कमांड रहेगी, 1 लाइन और 2 लाइन के लिए। 1 लाइन के लिए है 20 और 2 लाइन के लिए है 28H। ओके, देन 5th कमांड रहेगी एंट्री मोड। ओके, एंट्री मोड के लिए कमांड है यहाँ पर 06। देन डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑफ। ओके, अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी ऑफ करना है, कर्सर ब्लिंकिंग नहीं करना है, तो आप यहाँ पर 0x08 नंबर की कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑन करना है तो आप 0E नंबर की कमांड यूज कर सकोगे। अगर आपको डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ चाहिए होगा तो 0C नंबर की कमांड है। डिस्प्ले ऑन कर्सर इज ब्लिंकिंग तो आपके पास 0F नंबर की कमांड है। एंटायर डिस्प्ले लेफ्ट, आपको सारा डाटा जो डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराते समय हम जो डेटा डिस्प्ले कराओगे तो वो लेफ्ट साइड चाहिए, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए, तो आप एंटायर डिस्प्ले लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो या राइट शिफ्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कमांड रहेगी 18 और 1C। ओके, देन मूव कर्सर लेफ्ट बाय 1 कैरेक्टर और मूव कर्सर राइट बाय 1 कैरेक्टर। ओके, तो कर्सर को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करा सकते हो बाय 1 कैरेक्टर। इसके लिए कमांड रहेगी 10 और 14H। ओके, सिमिलरली क्लियर डिस्प्ले के लिए कमांड रहेगी 0x01H। ओके, इस तरह की कमांड आपको यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी। तो आउट ऑफ दैट हम फ्यू ही कमांड यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि उतनी कमांड के द्वारा आपको यहाँ एलसीडी इंटरफेस कराना पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो मैं आपको कुछ कमांड्स यहाँ बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी यूज कर रहा हूँ, तो 1 बाय 1 सारी यहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि भाई मैं अगर माइक्रो कंट्रोलर और एलसीडी का इंटरफेस करूंगा, तो इंटरफेस करते समय मैं यहाँ आपको सजेस्ट किया कि भाई यहाँ मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके, इस पर्टिकुलर इंटरफेसिंग में 16 पिन से लेकर 23rd पिन तक एलसीडी कनेक्टेड है। ओके, तो 16 टू 23rd पिन यहाँ पर पोर्ट 1 की कनेक्टेड है, तो एक एक करके बताते जा रहा हूँ। तो 16 से लेकर 23rd पिन यहाँ पर फर्स्ट टेबल में आपको पता ही है। ओके, तो इन लाइंस को एज अ आउटपुट लाइन मुझे यूज करना है, क्योंकि वहां पर मुझे डाटा एलसीडी को भेजना है या कमांड एलसीडी को भेजना है, तो इस वजह से मैं वहां पर डेटा लाइंस DB0 टू DB7 कनेक्ट करूंगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पोर्ट 1 की 16 से लेकर 23rd लाइन यहाँ यूज करने वाला हूँ। उनको मैं लॉजिक 1 बिट पुट आउट कर रहा हूँ और रिमेनिंग्स को मैं यहाँ लॉजिक 0 बिट पुट आउट कर रहा हूँ। ओके, जो यूज करना है मुझे इसलिए 1 कर रहा हूँ या मुझे यहाँ पर उसके ऊपर डाटा भेजना है, इस वजह से मैं उसे लॉजिक 1 पुट आउट कर रहा हूँ और रिमेनिंग 0। इस वजह से मेरा कोड प्रिपेयर हो जाएगा। इन हेक्साडेसिमल बता रहा हूँ 00FF0000। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, फिर से पीछे चल रहा हूँ इंटरफेसिंग डायग्राम की तरफ। अभी मैं यहाँ
जो R/W बार और E, ये जो पिन्स है इनको यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो पोर्ट 0 में उसे कनेक्ट किया है 20th लाइन को, ओके, RS कनेक्ट किया है, और पोर्ट 0 के 29th लाइन को एनेबल लाइन कनेक्ट किया है, और R/W ग्राउंड है। तो ग्राउंड के लिए आपको यहाँ पर कोड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन पोर्ट 0 की 28 और 29 लाइन के लिए आपको कोड वहां लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले 28 लाइन के लिए RS के लिए कोड लिख लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई 28 और 29 लाइन मुझे एज अ आउटपुट लाइन चाहिए। पहले 28 और 29 लाइन मुझे आउटपुट लाइन चाहिए, इस वजह से मैं उसे एनेबल कर देता हूं एज अ आउटपुट लाइन। सो पहले जो सेकंड जो टेबल है उसमें आप देखोगे, सेकंड टेबल में आपने वहां पर 28 और 29 लाइन को लॉजिक 1 बिट वहां पर पुट आउट किया है। ओके, बाकी सारी लाइंस आपको वहां पर 0 रहेगी, यानी मैं 28 और 29 लाइन को आउटपुट लाइन बनाया। ओके, तो इस वजह से मैंने वहां पर 1 1 रखा। मेरा कोड प्रिपेयर हुआ है 300000000। गेटिंग एवरीवन? ओके, नो, अभी मैं थर्ड टेबल के लिए बता रहा हूं। थर्ड टेबल देखिए, वहां पर 29 लाइन है। ओके, थर्ड टेबल में 29 लाइन को 1 किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई 29 लाइन को 1 किया है, इस वजह से उसे यहाँ यूज करूंगा। सो 29 लाइन मुझे चाहिए, तो इस वजह से वह लाइन मुझे यहाँ एज आउटपुट लाइन चाहिए, और 28 लाइन मुझे यूज नहीं करनी है तब, तो मैं यहाँ 29 लाइन के लिए कोड लिख रहा हूँ। तो उसका कोड रहेगा 200000000। ओके, और अगर 28 लाइन यूज करना है, 29 लाइन मुझे नहीं चाहिए है, तो 28 लाइन को मैंने लॉजिक 1 बिट पुट आउट किया, और उसका हेक्साडेसिमल कोड मुझे प्रिपेयर्ड हुआ है 1000000। इस तरह का कोड मुझे मिलेगा। कोई डाउट? ओके, तो आपके पास ये कोड आ गए, कितने कुल मिलाकर 4 कोड है। ओके, पहला है FF0000, दूसरा है 3000000, और 200000000, और आखिरी में है 1 और 0000000। ओके, तो ये कोड आपके पास रहेंगे। मैं इस कोड के साथ आगे चल रहा हूं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम भी बता रहा हूँ। प्रोग्राम में वो कोड शायद आपको दिखेंगे यहाँ, तो मैं एक एक करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताते जा रहा हूँ। ओके, तो पहली इंस्ट्रक्शन है हैश इंक्लूड lpc21xx.h। इसके बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जो न्यू कमर है उनके लिए बता दे रहा हूँ। इट इज अ हेडर फाइल। ओके, LPC21xx जो 21 सीरीज है, 21 सीरीज में जो जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर का लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड कीवर्ड, ये सारा उसमें अवेलेबल रहेगा। तो स्टैंडर्ड हेडर फाइल यहाँ पर आपको यूज करना है फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड कीवर्ड के लिए। या कुछ जो फंक्शन अवेलेबल रहेगा, वो फंक्शन आपके बोर्ड डॉट के जो फंक्शन है वो सारे आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड जो लाइन है वो सेकंड लाइन है वाइड एलसीडी डाटा इन वैल्यू। ओके, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। वाइड एलसीडी डाटा मैंने लिखा है, आप उसे चेंज कर सकते हो। ओके, वाइड इज अ कीवर्ड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिटर्न, सो दैट्स व्हाई वाइड एलसीडी डाटा लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास करने वाला हूँ, तो पैरामीटर पास करने के लिए मैंने यहाँ INT वैल्यू यहाँ पास किया है इन राउंड ब्रैकेट। तो INT वैल्यू के द्वारा मैं वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करूंगा, तो वैल्यू वहां वो फंक्शन में यूज होगी। नाउ नेक्स्ट वन, मैं सारे फंक्शंस में एक एक आगे बताऊंगा, पहले यहाँ यूज बता दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट फंक्शन है वाइड LCD CMD इन राउंड ब्रैकेट INT वैल्यू। तो यहाँ यह फंक्शन यूज किया है LCD के कमांड के लिए। ओके, पहले वाला फंक्शन यूज किया था सिर्फ डाटा के लिए। अगर मुझे डाटा कोई पास करना होगा तो LCD डाटा, अगर मुझे कमांड पास करना है तो मैं यहाँ यूज करूंगा LCD CMD, ये फंक्शन वहां यूज करूंगा। तो उसके साथ साथ मैं INT वैल्यू यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। वैल्यू के द्वारा मैं यहाँ पर मैं कमांड या डाटा पास कर सकूंगा। थर्ड वन
है यहाँ पर वाइड डिले इन राउंड ब्रैकेट आई टाइम। ओके, तो डिले इस नाम का फंक्शन है, तो इस डिले नाम के फंक्शन के द्वारा मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ डिले यहाँ पर जनरेट करने वाला हूँ। कितने अमाउंट ऑफ डिले मुझे चाहिए है तो मैं यहाँ पर उसे बताऊंगा आई टाइम के द्वारा। आई टाइम के द्वारा उसमें वैल्यू मैं पुट आउट करूंगा और उसके द्वारा मैं यहाँ डिले का जनरेशन करूंगा। तो ये तीनों फंक्शंस आपके सामने हैं। अभी मैं यहाँ तीनों फंक्शंस को यहाँ पर पहले बता दे रहा हूं, फिर मैं आईएनटी मेन की तरफ आऊंगा। राइट, तो पहले एलसीडी डाटा के ऊपर जाते हैं। तो एलसीडी डाटा यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो एलसीडी डाटा का फंक्शन यहाँ पर आपका कुछ इस तरह रहेगा। ओके, एक मिनट है, मैं यहाँ पर पहले ओके मैं शायद लाइन ब्रेकअप करूंगा, तो इसमें मैं पहले मेन के ऊपर ही चलता हूँ। ओके, यानी आपको वहां प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक एक करके आएगा। सो दैट्स व्हाई आईएनटी मेन राउंड ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा। ओके, करली ब्रेस है, देन स्टार IODIR1 यहाँ पर लिखा है। ओके, इज इक्वल टू 0x00FF0000। ओके, आपने शायद ये पर्टिकुलर आपने FF0000 ऑलरेडी देखा। ओके, ये कोड मैंने पिछले स्लाइड में आपको कहा, ये कोड हम बता रहे हैं। ये पोर्ट 1 के लिए है। पोर्ट 1 में DB0 टू DB7 लाइन यहाँ कनेक्टेड है, तो पोर्ट 1 में है, इस वजह से हमने रजिस्टर का नाम भी लिया है वही जो है IODIR1। IODIR1 यानी ये पोर्ट 1 के लिए अवेलेबल रहेगा और पोर्ट 1 की लाइंस यहाँ पर आपको एज अ आउटपुट लाइन एनेबल करेगा। तो FF कोड के द्वारा उतनी 16 से 23rd लाइन तक वह हम एनेबल करने वाले हैं। और स्टार IODIR1 इसलिए लिखा है क्योंकि यह इंटरनली ARM7 में यह रजिस्टर प्रेजेंट रहेगा, इस वजह से स्टार IODIR1 यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है स्टार IODIR0। स्टार IODIR0 यानी हम यहाँ पर पोर्ट 0 का यूज करने वाले हैं। तो 0 इस वजह से कि यह बता रहा है कि हम पोर्ट 0 का कुछ लाइन्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि हम पोर्ट 0 की लाइन्स यहाँ यूज करने वाले हैं, पिन नंबर 28 और 29 लाइन। यह हमने इंटरफेसिंग डायग्राम में भी देखा है। तो पिन नंबर 28 और 29 लाइन, तो मैंने यहाँ पर लॉजिक 1 बिट पुट आउट किया और उसके द्वारा मैंने कोड भी फाइंड आउट किया था 3000000। इस तरह का कोड मैंने वहां फाइंड आउट किया था। ओके, तो ये कोड मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। नो LCD CMD इन राउंड ब्रैकेट 0x38। ओके, अभी यहाँ ये जो LCD CMD जो है वह फंक्शन में यहाँ कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ वाइड कीवर्ड नहीं दिया। ओके, डायरेक्टली यह फंक्शन यहाँ पर राइट आउट किया। तो LCD CMD यह फंक्शन हमने यहाँ लिखा है। ओके, और उसके राउंड ब्रैकेट में हमने लिखा है 0x38। ओके, तो 0x38 का क्या पर्पज है? 0x38 यहाँ पर ये LCD कमांड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेकंड जो लाइन है, जो सेकंड नंबर की कमांड है, वहां पर आप देख सकते हो 0x38 यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो 0x38 यहाँ इस पर्टिकुलर LCD कमांड है, तो हमने यहाँ वह LCD कमांड यहाँ पर लिखी है। ओके, अभी इस कमांड के फंक्शन के ऊपर चलते हैं। जब यहाँ पर ये रूटीन कॉल होगी तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये डायरेक्टली यह फंक्शन पे आएंगे। तो LCD कमांड नाम का फंक्शन यहाँ पर बॉडी के साथ लिखा है। इस बॉडी में क्या क्या लिखा है ये देखते हैं। तो अभी यहाँ पर वाइड LCD CMD इन राउंड ब्रैकेट INT वैल्यू, यानी जो 0x38 है वह यहाँ वैल्यू को असाइन होगा, यानी वैल्यू की जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू में यहाँ वैल्यू रहेगा 0x38 और यह वैल्यू यहाँ पर यूज की जाएगी। ओके, तो करली ब्रेस के नीचे लिखा है स्टार IOCLR1 ओके इज इक्वल टू 0x00FF0000। ओके, हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, हम यहाँ पोर्ट लाइन जो है वह DB0 टू DB7 यहाँ पर 0 बिट पुट आउट कर रहे हैं। 0 बिट पुट आउट करेंगे यानी LCD के ऊपर कोई डाटा वहां पर डिस्प्ले अगर होगा या कोई गार्बेज डाटा वहां पर होगा तो वो डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से हमने IOCLR1 लिखा और IOCLR1 के द्वारा हमने DB0 टू DB7 लाइन के ऊपर वह पुट आउट कर दिया। Now, star IOCLR0 is equal to 0x100000000। ओके, हम यहाँ पर अभी पिन नंबर 28 लाइन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं।
पिन नंबर 28 लाइन यहाँ पर पोर्ट 0 की है। यह पोर्ट 0 की लाइन है, इस वजह से यहाँ पर हमने रजिस्टर को यूज किया है स्टार IOCLR0। स्टार IOCLR0 यहाँ आपको बता रहा है कि भाई यहाँ लॉजिक 0 बिट यहाँ पर पुट आउट करने वाले हैं। कौन से लाइन के ऊपर? पिन नंबर 28 के लिए। पिन नंबर 28 यहाँ पर RS को कनेक्टेड है। RS यहाँ पर रजिस्टर सेलेक्ट है। अगर वहां लॉजिक 0 बिट अगर जाता है तो यह 0 बिट बताता है कि हम यहाँ कमांड रजिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। गेटिंग एवरीवन? तो हमने यहाँ पर कमांड रजिस्टर सिलेक्ट किया और हम कमांड भेज रहे हैं 0x38। तो वह कमांड यहाँ पर भेजने के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं जो नीचे की लाइंस है। वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 16। हमने यहाँ पर इस लाइन का यूज क्यों किया? वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 16। इसका पर्पज है वैल्यू यानी 38, यह जो 38 है यह लेस देन इज इक्वल टू 16, यानी हम 16 बिट फ्रॉम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे हैं। यानी हमारा जो कोड है 38, वह कोड यहाँ पर 38 जो था वह 38 कोड है वह शिफ्ट हो रहा है 16 बिट। सो इस वजह से यहाँ 16 बिट शिफ्ट कराने के लिए हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर थर्ड वाले लाइन का यूज कर रहे हैं, वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पर हम उसे शिफ्ट क्यों करा रहे हैं? तो शिफ्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारा जो DB0 to DB7 है वह पिन पोर्ट 1 के ऊपर वह पिन नंबर 16 से लेकर 23rd लाइन तक कनेक्टेड है। तो पिन नंबर 16 से लेकर अगर 23rd तक अगर वो कनेक्टेड है तो 0 से लेकर 15 तक लाइन हमें यूज नहीं है। तो वहां 0 से लेकर 15 यानी कुल मिलाकर 16 लाइंस हो गए। तो हम यहाँ पर 16 यही इंसर्ट यहाँ किए हैं क्योंकि हमारा जो डाटा है वह 16 बिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अगर वहां शिफ्ट हो गया वो 16 बिट लेफ्ट हैंड साइड तो उसमें 0 का इंसर्शन वहां पर हो जाएगा, और जितना 16 0 का इंसर्शन अगर हुआ तो हमारा कोड यहाँ पर इस तरह इस फैशन में दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ जो टेबल है वह टेबल यहाँ पर आपका इस तरह है। तो पहला जो टेबल है वह टेबल में जो 16 लाइन है वहां पर लॉजिक 1 बिट दिखाई दे रहा है, वहां से आपके बिट्स यहाँ पर रहेंगे और टोटल कुल मिलाकर आपका पहला कॉलम राइट हैंड साइड से सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में 0 बिट इंसर्ट हो जाएंगे और आपका डाटा 16 से 23rd लाइन तक अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पर यह कोड यहाँ पर लिखा है। ओके, नाउ आगे का स्टेटमेंट है स्टार IO सेट 1 इज इक्वल टू वैल्यू। हम यहाँ पर वैल्यू यह जो है जो हमने शिफ्ट की है वह वैल्यू अभी यहाँ स्टार IO सेट 1 पर भेज देंगे, यानी हम यहाँ पर उसे लॉजिक 1 बिट के लिए यहाँ पर भेज देंगे, यानी 0x38 यहाँ पर हम पोर्ट 1 के ऊपर भेजेंगे, यानी DB0 to DB7 लाइन के ऊपर वह डाटा अवेलेबल होगा। जैसे भी यहाँ पर डाटा अवेलेबल हुआ है पिन नंबर 16 से लेकर 23rd तक, हम यहाँ हमारे LCD को एनेबल करेंगे। ओके, एनेबल किस मोड में करेंगे? राइट मोड में। तो राइट मोड में एनेबल करने के लिए हमें राइट पिन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और एनेबल लाइन को भी यूज करना पड़ेगा, बराबर। सो दैट्स व्हाई राइट लाइन तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ग्राउंड होने की वजह से उसे हमें तो यूज करने की जरूरत नहीं रही। ओके, अगर वो ग्राउंडेड है तो वहां पर वो डायरेक्टली राइट मोड में ही अवेलेबल होगा, बस खाली हमें यहाँ पर एनेबल लाइन का यूज करना है। तो एनेबल लाइन का यूज करने के लिए हमें यहाँ पर वह हाई टू लो स्टेट वहां पर जनरेट होना जरूरी है। तो हाई टू लो स्टेट जनरेट होने के लिए हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर 6 स्टेटमेंट का यूज किया है। इन 6 स्टेटमेंट के द्वारा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है स्टार IOCLR0, उसके बाद है डिले। ओके, उसके बाद के स्टेटमेंट है स्टार IO सेट 0 डिले, और उसके बाद के 2 स्टेटमेंट है स्टार IOCLR0 और डिले। यानी हम क्या कर रहे हैं? लॉजिक लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो। ओके, हम इस तरह का स्टेट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। सबको समझ में आया क्या?
ये जो 6 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ये 6 स्टेटमेंट के द्वारा मैं एनेबल लाइन के ऊपर लॉजिक लो, लॉजिक हाई और लॉजिक लो सिग्नल जनरेट कर रहा हूं। तो लॉजिक लो, लॉजिक हाई और लॉजिक लो स्टेटमेंट यहाँ सिग्नल यहाँ पर जनरेट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और उसमें डिले का भी इंट्रोडक्शन किया है, यानी उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिले वहां पर जनरेट होना चाहिए। ओके, तो वह डिले वहां जनरेट होगा और उसके द्वारा मैं वहां मेरा एलसीडी को मैं राइट मोड में पुट आउट कर सकूंगा। ओके, तो यहाँ स्टार आईओ क्लियर 0 इज इक्वल टू 0x200000000। तो यहां मैंने एनेबल लाइन को डिफाइन किया एज ए लॉजिक जीरो स्टेट। तो लॉजिक जीरो स्टेट यहां पर कब तक अवेलेबल रहेगी? जब तक डिले 250 फिनिश नहीं हो जाता है। अभी यहाँ पर डिले 250, यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, डिले इस नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया। 250 का मीनिंग क्या है? 250 इज अ टाइम अमाउंट। ओके, मैंने यहाँ पर टाइम डिले यहाँ पर जनरेट कर दिया। सबसे आखिरी देखिए, सबसे लास्ट में देखिए, वहां पर वाइट डिले इन ब्रैकेट इन आई टाइम लिखा है और उसके नीचे लिखा है इंट आई। ओके, तो यहाँ आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने डिफाइन की है फॉर में 0 सेमिकोलन आई लेस देन आई टाइम सेमिकोलन आई प्लस प्लस। ओके, और राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पर सेमिकोलन भी दे दिया, यानी आई इज इक्वल टू 0 टू आई टाइम, यानी मैंने 250 डिफाइन किया है, तो 0 से लेकर 250 तक हम यहाँ पर टाइम डिले जनरेट करेंगे फॉर लूप के द्वारा, और वह डिले हमारे एनेबल लाइन के लिए वह एप्लीकेबल होगा। तो एनेबल लाइन में लॉजिक लो स्टेट कब तक अवेलेबल रहेगी? जब तक यहाँ इतने अमाउंट ऑफ डिले वहां पर प्रोवाइड ना हो, राइट? तो इस वजह से यहाँ हमने इस पर्टिकुलर डिले फंक्शन को यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। गेटिंग एवरीवन? नाउ पहला हो गया स्टार आईओ CLR 0, सेकंड है स्टार आईओ सेट 0। ओके, तो अभी आईओ सेट 0 यहां पर दे रहे हैं इज इक्वल टू 0x200000000। ओके, डिले इन राउंड ब्रैकेट 250। यहां पर लॉजिक हाई स्टेट जनरेट करेंगे और उसके बाद फिर से लॉजिक लो स्टेट जनरेट करेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर 6 स्टेटमेंट के द्वारा हमने लो हाई लो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहां पर जनरेट किया है। ओके, गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? ओके, मैं पिछले स्लाइड में जाता हूं। अभी यहां पर फिर से डिले जनरेट किया है, डिले 250। इस डिले को इसलिए कॉल किया है कि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, कमांड है, ये कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। तो प्रॉपरली ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये डिले दिया है। पहली कमांड भेजने के बाद हम सेकंड कमांड फिर से भेज रहे हैं 0E, इसलिए मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया LCD CMD इन राउंड ब्रैकेट 0x0E। ओके, फिर से ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगी, फिर से वहां पर वो पर्टिकुलर लो हाई लो का चक्कर रहेगा, फिर से डिले रूटीन रहेगा। फिर से थर्ड कमांड यहाँ पर 0x80, यहाँ मुझे पहले लाइन के ऊपर डाटा डिस्प्ले करना है, इस वजह से यहाँ LCD CMD 0x80 यहाँ पर कॉल किया है, फिर से डिले रहेगा। नो, आपको शायद ये समझ में आ गया कमांड की रूटीन्स और डिले की रूटीन्स। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन रूटीन, दैट डाटा। अभी यहाँ पर मुझे डाटा डिस्प्ले कराना है हेलो, तो हेलो यह डाटा डिस्प्ले कराना है, इस वजह से मैं LCD डाटा इन राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट में लिखा है H, LCD डेटा इन राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट में लिखा है H, यानी इसका मीनिंग रहेगा कि मैं यहाँ पर H पास करना चाह रहा हूँ। H पास करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से यहाँ वह डाटा रूटीन के ऊपर चला जाऊंगा। ये सामने आपके यहाँ पर इस स्लाइड में यह डाटा रूटीन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा आपने कमांड रूटीन देखा वैसा ही यहाँ पर है, ओनली माइनर वन डिफरेंस। ओके, एक ही डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ क्लियर दिया है सेकंड स्टेटमेंट। ओके, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्टार आईओ क्लियर 0 0x100 00000, यहाँ उसकी जगह यहाँ सेट किया है। क्यों?
आप ही बता सकते हो। आर एस इज इक्वल टू 0 एंड आर एस इज इक्वल टू व्हाट, 1। गेटिंग एवरीवन? आर एस इज इक्वल टू 0 था इसलिए वहां पर कमांड था, आर एस इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर डाटा है। बाकी पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। गेटिंग एवरीवन? तो एलसीडी डाटा इस नाम का फंक्शन है। वैल्यू में यहाँ आपका वैल्यू होल्ड किया जाएगा एच, और यह वैल्यू आप फिर से लेफ्ट शिफ्ट कराओगे 16 बिट तक, और फिर वह डाटा आप एलसीडी को पास करोगे, एलसीडी वहां डिस्प्ले कराएगा एच। ओके, तो इस तरह आपको एक एक करके डाटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ एच आएगा, फिर बाद में ई आएगा, बाद में एल आएगा, बाद में एल आएगा, बाद में ओ आएगा, और उसके बाद हम फिनिश करेंगे और ये एलसीडी का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? तो इतना यह प्रोग्राम आपको यहाँ पर बताना था। तो यह प्रोग्राम रहेगा आपका एलसीडी इंटरफेस के लिए। I hope you are getting this. Okay, if you have any kind of doubt, you can ask me very freely on my WhatsApp. No problem. Thank you very much. Give your attendance in the comment box.